ऑलराइट जी, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2024 4-1। ठीक है, देखते हैं जरा केस स्टडी क्या चक्कर है इस केस स्टडी का। द इम्पैक्ट the economic impact of extracting natural resources. Many low-income countries have high unemployment and large deposits of unused natural resources. जैसे कि अब हम रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में बड़ा मिनरल्स और वो क्या है, क्या था, रेयर अर्थ मिनरल्स वाला चक्कर, गोल्ड और कॉपर वाला चक्कर। In 2007, Ghana discovered new offshore oil field and extraction started in 2010. The discovery and extraction of such natural resources can create new jobs that increase incomes and consequently gross national income. The additional income will lead to an increase in spending on both domestic and imported goods and services, creating further employment in other sectors through the multiplier effect. Multiplier आ गया भाई। However, the extraction, अच्छा जी, वो कह रहे हैं GNI बढ़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, इनकम बढ़ेगी। तो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं किसमें, लो इनकम कंट्रीज में, तो उनका सीन हो जाता है ऑन। However, the extraction of oil may crowd out other sectors of the economy. समझ आई? Workers might move, for example, from agriculture to manufacturing to the mining sector due to higher wages. Also, the prices of houses, land, locally produced goods may increase. This could increase the cost of living, discourage businesses from operating in the affected area. तो एक तो इन्फ्लेशन हो गई है, क्राउडिंग आउट हो रही है, बाकी चीजें कम हो रही। The export of oil from Ghana causes an inflow of US dollars, increasing the exchange rate of the currency CD या जो भी हो, CD होगा। This appreciation reduces the competitiveness of Ghana's agricultural and manufactured goods, leading to an increased demand for imports. लें जी, करेंसी अप्रिशिएट हो रही है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे उसका इम्पैक्ट आ गया। The loss of competitiveness is referred as the Dutch disease, reflecting the experience of the Netherlands following the exploitation of their natural gas reserves. तो इसका एक नाम है इस चीज का कि अगर आप एकदम आपको चीजें, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होता है तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी और उससे अल्टीमेटली यू विल लूज, योर एक्सपोर्ट्स विल बी लेस कंपेटिटिव। और ये हुआ है नेदरलैंड्स के साथ। Oil provides the Ghanaian government with revenue from the tax on each barrel of oil produced. This revenue can be used to provide transfer payments. ठीक है जी, गवर्नमेंट रेवेन्यू भी आता है फिर इन चीजों से, ऑयल शॉयल से, नेचुरल रिसोर्सेज से, such as roads, health facilities, इन चीजों पे फर्दर खर्चा भी हो सकता है। These can benefit both households and businesses. Alternatively, the presence of such revenues can create corruption and conflict as political groups compete for them. हमारी तरह के हैं ये अफ्रीकन्स भी। सर ये जो केस स्टडी दी गई होती है ये होती है ओरिजिनल है, लाइक ये? यस यस, 100%। इसीलिए तो ये ओके। ये अच्छा वर्ल्ड सर, बैंक ये का टेबल नहीं, पूरा का पूरी केस स्टडी करते हैं? पूरे का पूरा, इसलिए तो ये रिमूव हुई भी होती है वो कॉपीराइट की वजह से। ओके। With the aid of a diagram, explain the effect of natural resource development on the potential growth of Ghana. हाँ जी, potential growth. Explain the effect of natural resources development on the potential growth of Ghana. एक नंबर आपने याद रखने के, रेफरल, ऊपर कोई एविडेंस उठाएं, डायग्राम का है तो 1 से 2 नंबर डायग्राम के मिलेंगे। फिलहाल मुझे बता दें, मेरे जहन में तो 2 से 3 डायग्राम आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि तीनों चलेंगे, कोई एक चलेगा, क्या क्या आ रहा है पोटेंशियल ग्रोथ? सर पीपीसी आ जाएगा। एक हमारे पीपीसी पास ऑप्शन है पीपीसी की, सादा पीपीसी बनाएं। पोटेंशियल ग्रोथ है तो आपने याद रखिए सिर्फ पीपीसी आउटपुट शिफ्ट नहीं करना, पॉइंट को भी बाहर मूव करना है, दिखाना है कि कंज्यूमर गुड्स भी ज्यादा और कैपिटल गुड्स भी ज्यादा, क्योंकि ग्रोथ भी तो दिखानी है, सिर्फ पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करना। और किसी के जहन में कुछ आ रहा है? ये भी तो हो सकता है एलआरएएस के थ्रू, क्लासिकल्स का बना लें या केन्जियंस का बना लें, जी ये भी सर। तो वो साइंस है। ये जो सिर्फ नेचुरल रिसोर्स तक रहना है कि हम करेंसी वाली जो बात है वो ना उसके ना ना अंदर ना ना, नेचुरल रिसोर्स आप फोकस्ड रहें। तो सबसे पहले, हाँ जी, बनाना क्या, पहले मुझे ये बताएं। पीपीसी बनाएंगे, वैसे तो चलना चाहिए, पीपीसी भी चलना चाहिए, ये भी चलना चाहिए, दोनों चलने चाहिए। ठीक है,
फिर नहीं मिलेंगे नंबर, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये एएस नहीं है, देख लेते हैं अभी, मेरा नहीं ख्याल से। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जी ये मिल जाएगा जब गाना को ऑफ शोर, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी फर्दर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, और क्या है, लोग इस सर आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर ये जो जिसमें लिखा है ना, फर्स्ट लाइन इसकी लिखी हुई थी कि कहते हैं लार्ज डिपॉजिट अनयूज्ड नेचुरल रिसोर्स, तो सर इसके अंदर LARS शिफ्ट होगा? हाँ, पोटेंशियल तो बढ़ रहा है ना आपका, आप एडी ना बढ़ रहे हो वो, लेकिन एलआरएस तो बढ़ेगा ना, ये हाँ तो जी, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे वो तो पोटेंशियल पे है ऑलरेडी नहीं, हमें पता था ना कि ये चीज़ है हमारे पास, लेकिन हम इसको यानी वो सप्लाई में इंक्लूड नहीं हम करेंगे, लाइक ऑलरेडी कंसिडर हुई होगी। तो बढ़ गया ना, ओके पोटेंशियल तो बढ़ेगा ना, आपने अगर रिसोर्सेज डिस्कवर कर ली, पोटेंशियल बढ़ेगा, आप उसको यूटिलाइज करें या ना करें। इन अदर ओके वर्ड्स, ये आप यहाँ पे थे, इस तरह भी हो सकता है कि पोटेंशियल तो इंक्रीज करके आप यहीं पे रह गए, लेकिन उसने पोटेंशियल ग्रोथ की बात की है। ओके सर। तो थोड़ा बहुत ये एविडेंस उठाना है, बोल रहे हैं जीएनआई बढ़ रहा है, डोमेस्टिक गुड स्पेंडिंग बढ़ रही है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फिर आपने या पीपीसी या ये बना देना है, और ग्रोथ भी दिखानी है, क्योंकि उसने कहा है ग्रोथ, तो मैं एडी को इधर बनाऊंगा इंस्टेड ऑफ देयर। ठीक है, तो मैं इस तरह करूंगा कि ग्रोथ भी नजर आई है अगर मैं ये बना रहा हूँ। एक्सेस का ख्याल रखना है, इधर कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स लेना है, इधर एवरेज प्राइस लेवल अगर आप ये बना रहे हैं, ठीक है, और रियल जीडीपी लेना है। और बताएं और क्या लिखेंगे, सर टेबल्स में, एक और टेबल्स में तो ऐसा पॉइंट कुछ मैंने नहीं आपसे क्लैरिटी है। लेनी थी। जी जी। सर जैसे ये LRS की एग्जांपल ले लें, तो उसके अंदर जो डिमांड है AD है, उसके अंदर सिर्फ शिफ्ट आएगा ना? डिमांड के अंदर कुछ भी नहीं ना होगा यार, पोटेंशियल ग्रोथ हो। ओके देखो ना, पोटेंशियल ग्रोथ है, सिर्फ सप्लाई इंक्रीज कर रही है दोनों केसेस में, डिमांड वही रहेगी। सॉरी, वो सॉरी मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा ना? हाँ, उसमें मूवमेंट लॉन्ग कर। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, फिर अपने तरफ से अपना नॉलेज, एक तो पहली चीज एविडेंस ऊपर से, दूसरी चीज ग्राफ, तीसरी चीज अपना नॉलेज के पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है, और फिर लिंक करना है कि पोटेंशियल ग्रोथ इनकी कैसे हुई है, कैसे हुई है पोटेंशियल ग्रोथ, जब नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप होते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी गिर सकती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रही है, और लैंड विच इज अ नेचुरल रिसोर्स, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज अवेलेबल, वो इंक्रीज हो गया। और कुछ आ रहे जहन में, मेरा ख्याल से ये चार चीजें अगर आप लिखेंगे, थोड़ा सा एविडेंस, ग्राफ, पोटेंशियल ग्रोथ को समझा देंगे और लिंक बना देंगे, काफी होना चाहिए। आ जाए देखते सर हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो कह रहे थे सिर्फ 2 पॉइंट्स देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, इसी तरह के नहीं गलत कह गलत? रही थी वीडियो, गलत कह रही थी। हाँ जी, नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट विल इंक्रीज पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ गाना, द प्रोडक्शन एलआरएस और एलआरएस दोनों में से कोई एक, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। आउटवर्ड शिफ्ट है, कैपिटल गुड कंज्यूमर गुड है, शिफ्ट इन द पीपीसी एलआरएस एक नंबर, एक्सेस करेक्टली लेबल्ड। ये तो बहुत ही हलवा है भाई, ये तो बहुत आसान हो गया। क्या ख्याल है, इससे आसान कुछ देखा है? ये तो एएस से भी ज्यादा आसान हो गया, समझ आई? इन दोनों में से कुछ भी बना ले, लेकिन आपने फिर भी ख्याल रखना है कि पॉइंट भी मूव करना है, क्योंकि इट इज ग्रोथ। इसने नहीं किया हुआ, आपने फिर भी करना है, इस केस में आपका चल जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं चलता। एक्सप्लेन हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन गाना विल क्रिएट फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट। हाँ जी, मल्टीप्लायर इफेक्ट सबसे पहले समझा देंगे, क्या समझाएंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट की सारी कहानी समझा देंगे। दे दें एक आधा फॉर्मूला, दे दें मल्टीप्लायर का सबसे आसान वाला, चेंज इन नेशनल इनकम ओवर चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दे दें, ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आ जाएंगे सीधा इसके लिंक पे कि इंजेक्शंस कौन कौन सी बढ़ रही हैं। तो हम सबसे पहले लिंक करेंगे कि जो ऊपर ही लिखा हुआ था कि क्या हो रहा है,
ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्रीज हो रही है। हाँ, वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से उसको लिंक करना है उसके साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि इंक्रीज इन स्पेंडिंग डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटिंग फर्दर एम्प्लॉयमेंट एंड अदर सेक्टर्स थ्रू मल्टीप्लायर। एक तो उनकी एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया था इनकम्स बढ़ने की वजह से। टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया था तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। कंसिडर वेदर तो नहीं है, हाउस कंसिडर। होल्ड डिमांड भी बढ़ रही है ना सर? हाँ, कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन एज सच इंजेक्शन नहीं होती, लेकिन अलहदा से आप बता देंगे कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है। ओके। ठीक है, मल्टीप्लायर ऑफ इंजेक्शंस बढ़ रही हैं। द थिंग इज, डू वी गिव अनदर साइड? इट डज नॉट आस्क, क्योंकि ये कंसिडर नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी हम दे देंगे एंड पे हल्का सा टच दे दें, कुछ नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी किस चीज का, लेकिन दो चार गड़बड़ भी है। क्या? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का लिखा हुआ है कि क्राउड आउट हो सकती है, तो वो इंजेक्शन कम हो रही है। दूसरा, इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये भी लीकेज है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट को कम भी कर सकती है। ये एंड पे, एंड के लिए रख लें, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम टू बी ऑन सेफ साइड हल्का सा एंड पे एक दो लाइनें इस पे लिख देंगे। और बताएं, इंजेक्शंस का बता देंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट का बता देंगे, फॉर्मूला बता देंगे, लिंक क्रिएट कर देंगे इन तीन चीजों का। कंजम्पशन बढ़ रही है डोमेस्टिक, इनकम्स बढ़ रही है क्योंकि रीजंस देंगे, क्योंकि इनकम्स बढ़ रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है। फिर वो इनकम फर्दर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है, इनकम से टैक्स निकल रहा है, टैक्स निकल रहा है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और उससे फर्दर आप क्या बता सकते हैं, सेविंग ज्यादा होंगी, और वो सेविंग्स अल्टीमेटली फिर इन्वेस्टमेंट भी बन सकती है क्योंकि इनकम्स बढ़ रही है। इनकम्स, ये भी एक लिंक बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कहते हैं मल्टीप्लायर इज द टोटल इंक्रीज इज नेशनल इनकम आउटपुट फ्रॉम एन इंक्रीज इन इंजेक्शंस इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये 4-1 है, और बहुत ही हलवा है यार, ये तो एक एक नंबर मुफ्त में बांट रहे हैं। फॉर्मूला का सच नहीं है, लेकिन वो बता दिया कि आपने जीडीपी बढ़ रहा है, और दो नंबर तो सिर्फ मल्टीप्लायर के ही दे रही है वाले दो, ये तो सिर्फ मल्टीप्लायर से मिल रहे हैं। न्यू जॉब्स एंड देयर एसोसिएटेड इनकम्स, इनकम्स के साथ फिर लिंक कर दें। This, excuse me, this in turn creates a further round of spending, jobs and income। मल्टीप्लायर को समझा दें। एप्लीकेशन टू द केस स्टडी, दो नंबर मल्टीप्लायर के। इससे आसान देखा है कुछ जिंदगी में? कप ऑफ केक हो गया ये तो, बहुत ही आसान केस स्टडी है। गलत केस स्टडी दे दिया आप लोग। हाँ जी, एक्सप्लेन what the information means by the Dutch disease, and using figure 1.1 consider to what extent Ghana suffered from this problem। हाँ जी, डच डिजीज के ऊपर आ जाए। डच डिजीज क्या थी? जब आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होता है तो आपकी करेंसी, सबसे पहले लिंक बनाना है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हुआ, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, इंपोर्ट्स गिर गई, उससे फर्दर क्या होगा, आपका करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट प्राइसेस गिर जाएंगी। पहले ये लिंक बना लो, दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस लिंक। ठीक है, और उससे फिर हमारी एक्सपोर्ट्स गिरने का खर्चा है और इंपोर्ट्स बढ़ने का खर्चा है। ठीक है, कंपेटिटिवनेस लूज कर देंगे। उन्होंने भी ज्यादा रिजर्व्स, जो बहुत ज्यादा बेची चीज, तो अपने एग्रीकल्चरल गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक तो हमें यहां से मिल गया। ठीक है, और यहां से ये दो एविडेंस मिल गए। इज दिस क्लियर? अब 1.1 में क्या लिखा है? 1 पॉइंट, और ये कब हुए गाना में? 2010 में एक्सट्रैक्शन शुरू हुई है। ठीक है, 2010 के बाद आप देखें कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गाना, गाना की एक्सपोर्ट्स दी हुई है। उसके बाद वाकई 2010 के बाद देखें आप, वाकई गाना की एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स एंड फूड एक्सपोर्ट्स कितनी ज्यादा गिर गई। ठीक है,
आई बात समझ में? Between agriculture food exports have decreased as shown in figure. और क्या गिर गया है? ओर्स और मेटल एक्सपोर्ट्स भी गिर गई हैं। ठीक फ्यूल है। एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट बढ़ गई है, नहीं फ्यूल एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। फ्यूल एक्सपोर्ट्स बढ़ गई क्योंकि बाजारी बात है, वो तो बढ़नी थी। लेकिन एग्रीकल्चर और मेटल वाली गिर गई हैं और ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वाली भी गिर गई। तो फ्यूल एक्सपोर्ट्स एक वाहिद एक्सेप्शन है। ठीक है। तो ओवरऑल गिरी है एक्सेप्ट फॉर 2016। ये बता देना 2016 में सर्ज आया। उसके अलावा 2010 में जैसे ही उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया उनकी करेंसी अप्रिशिएट हुई होगी और गिर गया होगा। थोड़ा सा थोड़ा सा जिक्र किस चीज का? पीईडी का। लग यही रहा है कि ये इन चीजों की डिमांड इलास्टिक है क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ने से ओवरऑल एक्सपोर्ट्स गिरी हैं एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल्स। आई बात समझ में? थोड़ा सा इलास्टिक वाला इनलास्टिक वाला चक्कर। तो एंड पे कंक्लूजन भी देना पड़ेगा गाना कितना सफर किया इस चीज। तो गाना बिल्कुल नजर आ रहा है कि सफर किया, खासतौर पे कुछ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर और वो। ठीक है। और उनकी एक्सपोर्ट्स लग रहा है देखने में कि वो है एक्सेप्ट फॉर 2016 जिसमें इंप्रूव हुए। When natural gas was exported from Netherlands is caused by exchange rate to rise. ठीक है, ये हमने बता दिया। Made manufactured exports expensive, एक और नंबर आ गया, which led to a fall in manufacturing exports और output। ठीक है, वो गिर गई about 25% to less than 10%। अच्छा, अब उसने वैल्यूज भी दी हुई है हल्की फुल्की। ठीक है। चार्ट 2 वुड सपोर्ट द क्लेम और चार्ट 2 सपोर्ट कर रहा है। चार्ट 2 में क्या है? उसने तो 1.1 बताया था, हमने तो 2 देखा ही नहीं। इसमें तो जीना है और वो है बाकी चीजें। यही है, ये वाला चार्ट इसको रेफर कर रहा है। इसने ये देखें ये सर्च है और उसने बताया भी है कितना, तकरीबन 70% से सीधा अप्रोक्सीमेटली आ गया 35% पे। यस, 25% का तकरीबन डिक्रीज आ गया। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? ये तो बहुत आसान केस स्टडी है। Use the information to assess the impact of extraction of oil on the living standard in Ghana. कहां से कहानी शुरू करें? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन कर दें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइन कर दिया, दोनों एस्पेक्ट्स बता दिए, मॉनेटरी एस्पेक्ट भी है और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट भी है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह आ गया और इनकम आ गया। ठीक है। जी और थोड़ा सा गाना को भी डिफाइन कर दें एज लो इनकम कंट्रीज, हल्के से फीचर्स, क्योंकि शुरू में पहली लाइन मुझे याद है कि लिखा हुआ था कि लो इनकम कंट्री है, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है ये। जी ठीक है, ये मैनी लो इनकम कंट्रीज हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट और थोड़े से इसके भी फीचर्स। ठीक है, तो ये हो गया, इसके हम एक्सपर्ट हैं आजकल, इस पे हमने काफी काम किया है। क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा लो इनकम कंट्री, ज्यादा नहीं, लो इनकम कंट्रीज डिफाइन कर दिया और फिर कर दी तारीफें। सीन ऑन है जी, बहुत अच्छा हो गया गाना के लिए। ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है, ऊपर तारीफों का ढेर लिखा हुआ था। पहली बात, इनकम्स बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एक्सपोर्ट्स किसकी बढ़ी? ऑयल की। करेंसी अप्रिशिएट हुई, उससे कॉन्फिडेंस को लिंक करेंगे। ठीक है। और हर चीज को मेक श्योर लिविंग स्टैंडर्ड तक पहुंचाएं, इन चीजों को लिविंग स्टैंडर्ड्स तक। टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, जिससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन, उन्होंने बताया था कुछ तो रोड सर, हेल्थ केयर और एजुकेशन। किधर गया कहीं ये रहा गवर्नमेंट? सर, थर्ड लास्ट लाइन। ऑल्सो दीज कैन नहीं, बेनिफिट। मैन्युफैक्चर्ड कहीं ना कहीं लिखा है, हाँ ये ये सर थर्ड लास्ट ट्रांसफर लाइन। पेमेंट्स आ गई, पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी भी कम होगी। पॉवर्टी इनकम डिस्पैरिटी का जिक्र करें, रोड्स बनी, हेल्थ फैसिलिटीज बनी, पब्लिक वाटर सप्लाई बनी, तो लिविंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली बढ़ा है। ठीक है, इन चीजों का जिक्र करना है कि रोड्स, हेल्थ केयर,
ठीक है, और ट्रांसफर पेमेंट्स, और इन सब चीजों को याद रखें, लिविंग स्टैंडर्ड तक आपने पहुंचाना है। अगर आप खाली चीजें लिखते रहेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स को नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा दिया हुआ है भाईजान क्या, जीएनआई भी दिया हुआ है, जीएनआई भी बढ़ गया। ये दोनों आप यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के तरीके हैं। एचडीआई पे कमेंट करेंगे और लिविंग स्टैंडर्ड्स पे भी कमेंट करेंगे, इसको कोट करेंगे, इन दोनों चीजों को। ये हो गया हमारा पूरी एक साइड तैयार, डेटा फ्रॉम फिगर 2। एचडीआई भी आ गया और जीएनआई भी आ गया, जीएनआई पर कैपिटा, पीपीपी। नहीं भाई, सीनो जीएनआई एंड पीपीपी तीनों दोनों एक सेम चीज है। जीएनआई परचेजिंग पावर पैरिटी में निकाला गया, सेम चीज है, वो निकाला परचेजिंग पावर पैरिटी में गया। ओके। चलें जी, ये हो गया। नहीं भाई, कोई फायदा नहीं हुआ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बनेगी सर। एक उधर लिखा हुआ है हाउसिंग प्राइसेस का चक्कर, कहीं लिखा हुआ था ना, जी मेरे हाउसिंग ख्याल से सेकंड प्राइसेस बढ़ पैराग्राफ। गई। पहले तो जो लिखा हुआ है ना उस पे हो जाए कमेंट, क्योंकि गाना की बात हो रही है ना। करप्शन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया गवर्नमेंट रेवेन्यूज बढ़ने से, ठीक है। पॉलिटिकल ग्रुप्स का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, करप्शन हो गई। सर वो फिर एक इंडस्ट्री वाला भी था ना, वो इंडस्ट्रीज कुछ फेज आउट हो रही थी पिछला देख फर्स्ट लेते पैराग्राफ। हैं, माइनिंग सेक्टर, हायर वेजेस, वर्कर्स मूव करके एग्रीकल्चर सेक्टर से, ये भी एक इशू है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई लिखा हुआ है, और बिजनेसेस अफेक्टेड रीजन में फिर काम सफर कर रहे हैं, ठीक है। लैंड और लोकली प्रोड्यूस गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे आ जाए। डिमांड पुल, हाउसिंग प्राइसेस, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, करप्शन वाला पॉइंट। फिर ये भी था कि वो डच इफेक्ट भी तो है, इन्वेस्टमेंट भी तो गिर रही है और इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, उससे लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में उसको फिर लिंक करेंगे कि आप हो सकता है डेट बर्डन बढ़े। सर वो ट्रांसफर पेमेंट वाला जो कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज हुई है तो उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं एबल टू वर्क होंगे लेकिन वो नहीं करेंगे बिकॉज बहुत के फार फेच्ड है, बहुत फार फेच्ड है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम उसमें उस साइड पे लिख चुके हैं। तो ओवरऑल फिर आपने कंक्लूजन देना है, असेस करना है इम्पैक्ट को, कंक्लूजन देना है कि ओवरऑल बेहतर ही हुआ है क्योंकि इंक्लूसिव है, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स भी बढ़ी है, ठीक है, और हेल्थ भी बढ़ा है, और एचडीआई इसका एविडेंस है। तो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स बड़े हैं, ये कंक्लूजन होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मटेरियल, मटेरियल नॉन मटेरियल वेलबींग दोनों आ गया, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वेलबींग दोनों आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। Increase in jobs, oil-related industries, increase in income, wider range of goods and services available, job losses in parts of the economy, improvement in GNI more than double, human HDI भी education healthcare को जो cover करता है। कुछ याद, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, नहीं रहता, क्वेश्चंस तो लग रहा था। वर्किंग लेजर आवर्स के ऊपर कमेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर कोई डेटा नहीं है, पोल्यूशन वाली बात भी कर सकते थे, अच्छा अपनी तरफ से भी करनी थी बातें यहाँ, तो हम भूल ही गए। एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन डिफरेंट, कुछ में बढ़ गई एम्प्लॉयमेंट, वन साइडेड का कोई अ गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन सजेस्ट, ठीक एसओएल है। के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, समझ आ गई बात। तो ये तो बहुत ही आसान केस स्टडी थी यार, इसमें फुल आने चाहिए मॉक में अब तुम्हारे। नहीं सर,